آپ کو آگاہ کریں پنجاب حکومت کے ہمت کارڈ پروگرام کے حوالے سے۔ ہمت کارڈ کے لیے 3,88,000 افراد کا ڈیٹا مرتب کر لیا گیا ہے۔ 5,000 سے زائد افراد دیگر پروگرامز کے بینیفیشری نکلے۔ 5,000 سے زائد افراد حکومت کی اسکیموں سے پہلے ہی رقم وصول کر رہے ہیں۔ ڈیٹا میں 28,000 افراد کی دوبارہ تصدیق کی جائے گی۔ ڈیٹا میں 1,50,000 افراد کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمت کارڈ دینے کے لیے ماہانہ آمدن کی حد 40,000 روپے رکھی گئی ہے۔ 3,41,000 افراد کی میڈیکل بورڈ نے تصدیق کر دی۔ حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے پنجاب حکومت ہمت کارڈ کے تحت 7,000 سے 10,000 روپے دے گی۔ یہ رقم سہ ماہی بنیادوں پر معذور افراد کو ہی دی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، علی رامے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی علی رامے، آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب حکومت معذور افراد کو ہمت کارڈ شو دینے جا رہی ہے اور اس کے لیے رجسٹریشن کا آغاز جو ہے وہ کافی دیر سے کر دیا گیا تھا، اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب کو کچھ ڈیٹا کے حوالے سے بریفنگ جو ہے وہ دی گئی، اور اس میں انکشاف یہ ہوا کہ 5,000 سے زائد ایسے افراد جو کہ پہلے ہی بینیفیشریز ہیں ان کا ڈیٹا بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اب اس میں 3,88,000 کا جو افراد ہیں پنجاب کے اندر، لاہور اور پورے پنجاب میں جو معذور افراد ہیں، اور اس میں ان کا ڈیٹا تیار کر کے محکمہ سوشل ویلفیئر نے حکومت پنجاب کو جو ہے وہ پیش کیا تھا، اور اس کے تحت ہمت کارڈ کے تحت کیونکہ 7,000 روپے سے 10,000 روپے سماہی وہ شہریوں کو دی جانی تھی جو کہ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، معذور افراد ہیں۔ اب اس میں ڈیٹے میں کچھ جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی کہ 5,000 آلریڈی بینیفیشریز ہیں، وہ پہلے سے ہی گورنمنٹ کی مختلف اسکیموں سے یہ رقم جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 28,000 ایسے افراد ہیں جن کا ڈیٹا کو ابھی تک ڈیفائن جو ہے وہ نہیں کیا جا سکے کہ آیا یہ اس پروگرام کے قابل ہیں یا نہیں، کیونکہ رجسٹریشن کے حوالے سے لوگوں نے اپلائی تو ضرور کیا لیکن اس میں ڈیٹے میں اب کچھ پرابلمز جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ 7,000 سے 10,000 روپے تک رقم جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز ہیں ان کو یہ رقم جو ہے پرووائڈ کی جائے گی۔ جو فٹ ٹو ورک ہیں ان کی کیٹیگری اور ہو گئی، یعنی فٹ ٹو ورک میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ اگر ان کا وہ بول نہیں سکتے، اگر وہ سن نہیں سکتے، اس حوالے سے وہ محروم ہیں تو ان کی کیٹیگری ڈیفرنٹ رکھی گئی ہے۔ تو پی ایم ٹی سکور جو ہے وہ 40,000، یعنی کہ جن کی 40,000 سالانہ آمدن کم ہے وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے، ان کو ہی رجسٹرڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے ہمارے ساتھ رہے تھے۔ نصف صدی بعد بالآخر گورنمنٹ پائلٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی سنی گئی۔ 15 کروڑ سے گورنمنٹ پائلٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی تزئین و آرائش کا کام شروع۔ پہلے مرحلے میں 5.5 کروڑ کی لاگت سے اسکول کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کیا گیا۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے بات کریں گے۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ جی، نصف صدی کے بعد گورنمنٹ پائلٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی بھی سنی گئی ہے، اور یہاں پر 15 کروڑ روپے کی لاگت سے یہاں پر اسکول کی تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا گیا۔ اسکول کے کھڑکی دروازوں کی اگر بات کی جائے، پرائمری بلاکس کی بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے خستہ حالی کا شکار تھی یہ عمارت، کھڑکیاں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ تو لاہم اب اس اسکول کی تزئین و آرائش کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے، اور پہلے مرحلے میں 5.5 کروڑ روپے جو کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو جاری کر دیا گیا ہے، اور اس طرح مرحلہ وار جو ہے 15 کروڑ روپے کی لاگت سے جو ہے اس اسکول کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ اس سے قبل اسکول کو ماڈل بنانے کے دعوے جو ہیں وہ کیے جاتے رہے، لیکن کبھی بھی جو ہے اسکول کی جو ہے 50 سالوں میں نہیں سنی گئی، جبکہ جو باقی رقم ہے 9.5 کروڑ روپے وہ بھی جو ہے وہ مرحلہ وار جو ہے وہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو فنڈز جاری ہوتے رہیں گے، اور اس حوالے سے یہاں پر اسکول میں سائنس لیب، آئی ٹی لیب اور دیگر جو لیبز ہیں وہ بھی ان کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے، اور یہاں پر جو مین آڈیٹوریم تھا اور پرائمری سیکشن تھا اس کی بھی تزئین و آرائش جو ہے وہ شروع باقاعدہ طور پر کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جنید ریاض، بہت شکریہ۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کو درپیش مسائل کے حل، مریضوں کو بہتر سہولیات کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 11 رکنی کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ راجہ منصور کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ظاہر چودھری سے۔ جی ظاہر چودھری، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، ڈاکٹرز و طبی عملہ اور مریضوں کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے 11 رکنی کمیٹی جو ہے وہ حکومت نے قائم کی ہے، اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس کمیٹی کے سربراہ اسپیشل سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ راجہ منصور ہیں، جبکہ اسپیشل سیکرٹری محکمہ پرائمری ہیلتھ محمد اقبال اس کے کو کنوینر نامزد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وی سی نیشنل میڈیکل یونیورسٹی، پرنسپل پی جی ایم آئی و جنرل اسپتال، ایم ایس گنگا رام اسپتال بھی کمیٹی کے رکن ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر علی ایاز، ڈاکٹر شبیر چودھری، ڈاکٹر عاطف مجید جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے نمائندے ہوں گے، جبکہ ڈائریکٹر ٹی ٹی ایل ملتان مقدس النساء اور ہیڈ نرس چلڈرن اسپتال مقدس تسنیم بھی جو ہے وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں۔
डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन स्पेशलाइज्ड हेल्थ मरीज बेग भी इस कमेटी के रुकन हैं। कमेटी 3 माह में तिब्बी अमले और मरीजों को दरपेश जो मसाइल हैं और बेहतर सहूलतों की फराहमी के हवाले से अपनी सिफारिशात हुकूमत को देगी, जिसके बाद जो है वो हुकूमत जो है वो इस प्लान पर अमल दरामद करवाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिर चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात हुई है। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज़ पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को एयर एम्बुलेंस पायलट रन से आगाह कर दिया गया है, जबकि बहावल नगर और मियांवाली से एयर एम्बुलेंस के जरिए दूर दराज इलाकों में मरीजों की मुंतकली बारे भी आगाह किया गया। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने ये मुलाकात की। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज़ पर तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर रिजवान नसीर ने एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को एयर एम्बुलेंस पायलट रन से आगाह किया गया और बहावल नगर और मियांवाली से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए दूर दराज इलाकों में मरीज़ों की मुंतकली के बारे भी आगाह किया गया। शहर में हवाएं चलने से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी हुई है और मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 48 घंटों के दौरान शहर में बारिश मुतवक्के है, ये बताया जा रहा है। और हवा में नमी का तनासुब 65% तक रिकॉर्ड किया गया है। बारिश के हवाले से क्या पेश गोई है, कोमल असम से जानेंगे। जी कोमल। बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो शहरी लाहौर में सूरज बादलों के दरमियान आग मचल का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। मतलब जुज़वी तौर पर बरलूद है। ठंडी हवाएं, ताज़ा हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी और हब्स का जोर भी मुकम्मल तरीके से टूटा हुआ महसूस हो रहा है। अगर हम आसमान की तरफ नज़रें दुरा कर देखें तो बहुत ही खूबसूरत सा समा देखने में नज़र आ रहा है। बादल टुकड़ियों की शक्ल में मौजूद हैं। आसमान पर रंगारंगी जो है वो खूबसूरत सा समा देखने में नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर इस वक्त दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि बारिश बरसने के इम्कान जो हैं वो मौजूद हैं, यानी कि लाहौर में मौसम आज मज़ीद तब्दीलियाँ दिखाएगा, जिसको लाहौरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अपनी एहतियात को भी यकीनी बनाएं, क्योंकि शहरी लाहौर का मौसम जब तब्दीलियाँ दिखाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर बहुत मौसम खुशगवार महसूस किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जब हम एहतियात नहीं बरतते हैं तो उसके मनफी असरात भी लाहौरियों की जान पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल थी, आगाह कर रही थी। कवानीन में तरामीम और अमल दरामद से मुतल्लिक पोस्ट बजट सेमिनार अवारी होटल में पाकिस्तान टैक्स कम्युनिटी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। टैक्स कवानीन और में तरामीम और अमल दरामद के हवाले से सेमिनार का इनकाद किया गया है और पाकिस्तान टैक्स कम्युनिकेशन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ये तकरीब जो है हमारी होटल में हुई है। इसी बारे से हम बात करेंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के, उनसे तुकीर असलम से। तुकीर असलम साहब बताएं कि जो टैक्स के कवानीन हैं उनमें जो तरामीम हो रही है और जो अमल दरामद है उस हवाले से आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स आती हैं और 1 जुलाई से नाफज हो चुका है नया जो फाइनेंस एक्ट है, और उसकी एजुकेशन के सिलसिले में आज ये फंक्शन बनाया गया है। ये एक एकेडमिक परस्यूट है, तो बड़ा जहाँ तक लॉ में अमेंडमेंट आ जाती है वो टैक्स पेयर्स में और सिटीजन्स ने उसको फॉलो भी करना होता है और वकला ने उसको ओबे भी करना होता है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ बिजनेसेस एंड उसका जीडीपी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और टैक्सेशन इज आउटकम ऑफ दैट। एक कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट्स एक्सपेक्चर है, कह लें या रेवेन्यू है, वो एक सोर्स नहीं है एज सच। इसी तरह हम बात करेंगे जुडिशल मेंबर हैं मोहसिन विरक को लाहौर हाई कोर्ट में होते थे तो काफ़ी हम केसेस भी उनके रिपोर्ट करते थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मोहसिन विरक साहब ये बताएं कि आप जुडिशल मेंबर हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के, क्या कहेंगे सेमिनार के हवाले से और इसकी अफादियत है क्या? देखें, हमें सबसे आसानी ये हो रही है कि जो नए लॉ आए हैं वो आज सारे के सारे डिस्कस हो रहे हैं। यही केसेस की शक्ल में हमारे ट्रिब्यूनल में आएंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी कि उसके मुतलका कवानीन, उसके मुतलका जजमेंट्स, उसके मुतलका बाकी जो बैकग्राउंड है जब इल्म में होगा तो बीइंग जुडिशल मेंबर, बीइंग रेवेन्यू अथॉरिटी के ऊपर हम जो अपने फैसलों के हवाले से चीज़ें सारी दे रहे होते हैं उसमें बहुत बेहतरी आएगी सारे से। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।
अभी आपको आगाह करें कि नए CEOs, DEOs, डेप्टी DEOs का टेस्ट और इंटरव्यूज़ के ज़रिए इंतखाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आयुनाती के लिए 835 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस हवाले से बात कर लेते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। पोस्टों पर तैनाती के लिए अब CEOs, DEOs और डिप्टी DEOs की तैनाती जरिए टेस्ट हुआ करेगी। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तलीम ने पहले भी ऐलान किया था। अब 8 अगस्त को जो है तमाम CEOs, डिप्टी DEOs जिनके लिए दरखास्तें मौसूल हुई थी तकरीबन 835, उनके टेस्ट की तारीख जो है मुकर्रर कर दी गई। 8 अगस्त को स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट और इंटरव्यू के बाद जो है उनकी तैनातियाँ की जाएंगी। इससे कबल सिफारिश की बुनियाद पर जो है पंजाब भर के तमाम जिला में CEOs, DEOs और डिप्टी DEOs तैनात किए जाते थे और अब जो है वो मेरिट की बुनियाद पर और टेस्ट की बुनियाद पर जिन्हें कंप्यूटर स्किल्स होंगी, टाइपिंग स्पीड होगी और वो कंप्यूटर लिखना पढ़ना जानते होंगे, उन्हीं को CEOs, DEOs और डिप्टी DEOs तैनात किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद थे, अपडेट कर रहे थे। वादत रोड पर रुकने पंजाब असम्बली मलिक खालिद परवेज़ खोखर के ज़ेरे एहतमाम खुली कचहरी का इनेकाद। PP 169 के बासियों ने सीवरेज और वाटर सप्लाई के दरपेश मसाइल के अंबार लगा दिए। इस खुली कचहरी के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे राउद इरशाद हुसैन। जी राउद इरशाद। बिल्कुल जी, रुकने पंजाब असम्बली मलिक खालिद परवेज़ खोखर ने अपने डेरे पर हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें हल्का के बासियों के मसाइल सुने तो यहाँ पर अजीब सूरत हाल थी। हर दूसरी जो शिकायत थी वो सीवरेज और सैनिटेशन से मुतल्लिक थी। ख़ास तौर पर जो आबादियाँ हैं PP 169 में, जहाँ पर गुज़िश्ता जो बारिशें हुई हैं वहाँ पर जो ज़िंदगी थी वो अजीरन कर दी इन बारिशों के पानी में। मकसद ये शिकायत नई नहीं है और ये पुरानी शिकायत हैं, इनको एड्रेस करना किसकी जिम्मेदारी है? ये मैं समझता हूँ आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ये एड्रेस करना हमारी ही जिम्मेदारी है। चीज़ वजह ये है कि हमारा जो ये बरसात का जो ये आया 44 साल रिकॉर्ड टूटा, जिसमें ये समझता हूँ कि हमारा जिस तरह आपने ये क्लिफ्टन अलहमद कॉलोनी UC 216, 217 और इस तरह वहदत कॉलोनी के क्वार्टर्स वगैरह, इस तरह मेरे मेहरान ब्लॉक में UC 215 के अंदर जो मामला थे और ये पुराने मामला हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं वज़ीर आला साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि मेरी PP 169 के अंदर जो दरीना मसले हैं, वाटर सप्लाई, सीवरेज के मतलब बहुत मसला है और कोई मेरा मसला नहीं, ना लोगों की शिकायत है। इछरे से लेके सैदपुर तक, सैदपुर का अगर गांव देखें वो डूबा पड़ा है, उसके साथ सब्जाजार के ब्लॉक है मेरे पास, वो डूबे पड़े हैं। क्लिफ्टन कॉलोनी जो मेरा सेंटर प्लेस है मेरी PP का, उसका बुरा हाल है। जी आपने गुफ्तगू सुनी। अगर हल्के की बात करें, हल्का शुरू होता है इछरा से और इख्तिताम होता है सैदपुर गांव में, और वहाँ तक जो है वो सैनिटेशन के इश्यूज दरपेश हैं यहाँ के बासियों को। और यही वजह है कि आज की इस खुली कचहरी में ये मरकज़ी नुक्ता रहा है और हर दूसरी शिकायत जो है वो सीवरेज और वाटर सप्लाई के हवाले से रही है। इसको एड्रेस करने के हवाले से खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का मुकदमा, गिरफ्तार मुलजिमा आमना उरूज की दरख्वास्त ज़मानत का ये मामला है। खलीलुर रहमान कमर ने वकील के मुकर्रर करने की मोहलत मांगी। मुझे कल इल्म हुआ कि मुलजिमा आमना ने दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है। खलीलुर रहमान कमर की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, ड्रामा नगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तवान केस में मुलज़िमा आमना अरूज की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। खलीलुर रहमान कमर जो है बतौर मुद्दई इस ज़मानत के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करने और उसके पैरवी के लिए पेश हुए और अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनको कल ही इस ज़मानत दायर करने के हवाले से इल्म हुआ है कि मुलज़िमा ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर ली है। उन्होंने कहा कि उनको मोहलत दी जाए, वो अपना वकील मुकर्रर करना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने मोहलत देते हुए केस जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत है मुलज़िमा आमना अरूज की, उस पर 6 अगस्त तक जो है कार्रवाई को मुलतवी कर दिया है। आइंदा समाअत पर खलीलुर रहमान कमर को वकील पेश करने की हदायत की गई है। मुलज़िमा आमना अरूज पर इल्ज़ाम है कि उसने खलीलुर रहमान कमर को अपने फ्लैट पर बुलाया और अपने साथियों की मदद से अगवा कर लिया। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया।